Hello everyone, welcome to the accounts of class 12. We were in the chapter 2 accounting for partnership, and in the accounting for partnership there was the interest on capital that I have already explained the interest on capital and how to calculate it. Second topic was interest on loan and how to calculate it. Third topic was drawing and how to calculate the drawing under various condition. So these topics I have already explained in the earlier videos. Now in this video I will explain the new topic, that is the guarantee of profit. So let's start with this new topic, guarantee of profit. What does it mean? In a partnership business, a partner may be guaranteed a certain amount by the other partners और by any one of the partner. Means at the time of admission के समय क्या होता है, जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो गारंटी लेते हैं. जब हमारे पास कोई एडमिशन के लिए आएगा तो हम उसको क्या कर रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि आप बिजनेस करो, आपको मिनिमम 5,000 या मिनिमम 50,000 आपको प्रॉफिट होगा, ये हम गारंटी ले रहे हैं. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो पार्टनर्स हैं वो न्यू पार्टनर को क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आपको 50,000 का प्रॉफिट हर महीने होगा, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. ओके, सो ही विल गेट द मिनिमम प्रॉफिट ₹50,000. उसको 50,000 प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि उसको पार्टनर्स ने गारंटी दी है. अभी गारंटी किसने दी है, गारंटी कैन बी गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ द पार्टनर. या तो सारे पार्टनर मिलकर गारंटी दे रहे हैं कि उसको 50,000 प्रॉफिट होगा, या फिर उसमें से कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर जो भी है वो गारंटी दे रहे हैं कि यू विल गेट ₹50,000. ओके, सो व्हाई ही इज गिविंग द गारंटी, व्हाई दे आर गिविंग द गारंटी, because they are giving the guarantee so that partner है जो न्यू एडमिशन हो रहा है, that person will be interested in the firm, वो इंटरेस्ट लेगा, फर्म को ज्वाइन करेगा क्योंकि उसको गारंटी मिली है कि हमको 50,000 प्रॉफिट होगा, चाहे बिजनेस में लॉस हो चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो, पर आपको 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा. ओके, नाउ in this condition, if suppose loss, firm is having a loss, अगर लॉस हो गया अब क्या करेंगे, हमने तो पार्टनर को उसको गारंटी दिया है कि आपको 50,000 मिलेगा, मगर हमारे बिजनेस में तो लॉस हुआ. सो इन दैट केस अ पर्सन हु हैज टेकन द गारंटी, जिसने गारंटी दी है, ही विल हैव टू पे द अमाउंट टू द पर्सन हु हैव बीन गारंटीड. वो पर्सन को पे करेगा, कितना कम हो रहा है, सपोज ही इज गेटिंग 30,000 मिल रहा है, मगर गारंटी तो 50,000 की ली थी. गारंटी आपने बोला था कि 50,000 आपको मंथली मिलेगा, मगर हमारे प्रॉफिट में हमको सिर्फ 30 मिल रहा है और गारंटी तो 50 की ली थी. इस कंडीशन में क्या होगा, जिस पार्टनर ने गारंटी ली थी, जितना कम अमाउंट पड़ रहा है, जितना कम पैसा पड़ रहा है, वो क्या करेगा, वो उस पैसे को वो देगा. कौन देगा, जिसने गारंटी ली है. समझ में आया. सो अगेन लिसन, guarantee means in a partnership business, a partner at the time of the new admission, a person is given a guarantee by the other person or by the remaining or by all the partners that he will get the some amount and the profit. If the profit is not sufficient to meet that amount, then in that case a person who has taken the guarantee, he will have to pay that amount. Clear? समझ में आया. Now we will solve one question relating to the guarantee of profit. इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मीनिंग होता है. ओके, so now I will solve one question related to the guarantee of profit. Here the question is written. This is an example question of Segal accountancy. So here is the question written. A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1. C has been guaranteed a minimum profit of ₹12,000. Any excess will be paid by A, prepared profit and loss appropriation account if the profit is ₹50,000. So the question is A, B and C are sharing profit in 2:1. This is the profit sharing ratio is given. इस ratio में वो profit share कर रहे हैं. And C has been guaranteed a minimum profit of ₹12,000. Means C को guarantee मिली है that he will get ₹12,000 per month. उसको ₹12,000 प्रॉफिट मिलेगा. C has been guaranteed, C को गारंटी मिली है. Any excess will be paid by A. अगर कुछ कम पड़ता है तो वो किसने गारंटी ली है, A ने गारंटी ली है. ओके, prepare profit and loss appropriation account. So we have to prepare this account and the profit is given ₹50,000. So let's start how to solve this. In the previous video, in the earlier videos, I have solved so many questions related to the profit and loss appropriation account. अगर आपने वो videos देखे होंगे तो अभी आपको इतना पता होगा कि profit and loss appropriation account कैसे बनाना है. Okay, so particulars amount. Here First of all, in the credit side,
में क्यों लिख रहे हैं ये तो मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो इन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. In the credit side profit is written and the profit is given rupees 50,000. This is the profit. यहाँ पे हमने 50,000 प्रॉफिट ले लिया. ओके ठीक है. अब इन द डेबिट साइड, इस साइड में क्या लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट एंट्री. अब क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है. नो आई कांट सी एनी इंटरेस्ट. कोई भी इंटरेस्ट मुझे नहीं दिख रहा है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन. इसको अलग कर देते हैं. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट देखते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है. कहीं भी लोन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी एंट्री नहीं करेंगे. चलो इस साइड सैलरी लिखते हैं. सैलरी दिया है क्या? नो सैलरी. सैलरी इज नॉट गिवन. सैलरी भी कहीं नहीं दी है, वो भी नहीं लिखेंगे. अब क्या बच रहा है? कमीशन. कमीशन देखते हैं. कमीशन भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है. लिखना क्या है यहाँ पर? तो हम क्या करते हैं? 50,000 इज द प्रॉफिट. इसी को टोटल कर देते हैं बिकॉज नथिंग इज गिवन. क्या करेंगे? कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? यही 50,000 को टोटल कर देंगे. वी विल राइट द 50,000 ऑन बोथ द साइड. पहले हम क्या करते हैं? दोनों साइड का टोटल करते हैं. जो ज्यादा अमाउंट है वो दोनों साइड लिखते हैं. बट यहाँ पे तो एक साइड कुछ भी नहीं है तो 50,000 हमने दोनों साइड लिख दिया. अब काम किस साइड है? डेबिट साइड में काम है. डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है. डेबिट साइड में काम है. कितना कम है? पूरा 50,000 ही कम है. पूरा 50,000 कम है मीन्स इट विल बी प्रॉफिट. ये प्रॉफिट हो गया. कितना प्रॉफिट हो गया? 50,000. ओके. Now in the partnership, whatever whether there is a profit or loss, it is distributed among the partners. ये partners के बीच में बढ़ जाता है. So there are the three partners A, B and C. Three partners are there, and the profit we got rupees 50,000. And the ratio is 2:1. This is the rough work. 2:1 means A will get profit is rupees 50,000. A को कितना मिलेगा? A को मिलेगा A रेशियो ये होगी फर्स्ट वाली 2/2 + 2 + 1 2 + 2 4 + 1 5 2/5. ये फर्स्ट वाला 2 और इसका टोटल 2/5. 50,000 का 2/5 शेयर A को मिलेगा. Now solve it. 5 1s are 5, 5 10s are 50 and 0. 10 2s are 20. 20,000. A got 20,000. Okay. Now B, how much the B will get? B को कितना मिलेगा? B share is also 2. B का share भी 2 है. Means he will also get 50,000, 20,000. He will also get 20,000. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो B का भी 20 ही आएगा क्योंकि B का भी 2 है. ओके. अब C का कैलकुलेट करते हैं. C का शेयर कितना है? 1 है. C इक्वल टू 50,000 एंड C की रेशियो 1 है. 1/5. So 5 1s are 5, 5 10s are 50, 10,000. So C will get 10,000. अभी इतना क्लियर हुआ? हमने क्या किया? दोनों साइड टोटल किया. इस साइड कम था 50,000 कम था. 50,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ इन द क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हु हैज बीन गारंटीड. यहाँ पे देखो क्या लिखा है? सी हैज बीन गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट. सी हैज बीन गारंटीड. सी को गारंटी मिली है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए 12,000. ओके. सी हैज बीन गारंटीड दैट ही शुड गेट मिनिमम प्रॉफिट रुपीज 12,000. बट उसको यहाँ कितना मिला है? 10,000. और मिलना कितना चाहिए था? 12,000. यहाँ 10 था पर हमने गारंटी ली है 12. इसको गारंटी ली है 12. जब हमने गारंटी ली है तो उसको उतना देना पड़ेगा क्योंकि गारंटी उसको एडमिशन के समय मिली है कि he will get rupees 12,000. तो हम इसको 12,000 दे देते हैं. इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया है 12. इसको 12 दे दिया. क्यों दे दिया? क्योंकि उसको गारंटी मिली है. ओके. बट ही गॉट 10,000. देना था 12 बट उसको 10 मिला है. कितना कम मिल रहा है उसको? 2 + 2,000 और दे दो उसको. ये समझ में आया? मिलना था 12 बट ही गॉट 10,000. 2,000 रुपए इसको कम मिले हैं तो हमने 2,000 प्लस कर दिया. ओके. अब ये गारंटी किसने दी है? कौन देगा ये 2,000? अगेन कम टू द क्वेश्चन. C has been guaranteed a minimum profit of 12,000. Okay, we have given 12,000 to the C. Any excess will be paid by A. Any excess, अगर जो भी excess amount पे करना है will be paid by A. A ने गारंटी दी है कि कुछ कम पड़ेगा तो मैं दूंगा. A ने गारंटी दी है तो A will give his share. A will give rupees 2,000 from his share. अपने शेयर में से देगा तो इसमें से 2,000 अलग कर दो. इसमें से क्यों अलग किया है? क्योंकि A ने गारंटी ली है. जब A ने गारंटी ली है तो 2,000 कम पड़ रहा था. वो कौन देगा? A देगा क्योंकि A ने गारंटी ली है. तो उसके शेयर में से 2,000 रुपीज को लेस कर दो. ओके. नाउ 20 में से 2 लेस कर दो 18. ही विल गेट 18. द फाइनल अमाउंट राइट इन द अमाउंट कॉलम 18 और B का हो गया 20,000.
ओके, अब ये जो 50,000 था हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं। क्यों रब कर देते हैं? क्योंकि हमने तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। ओके, इसको टोटल करके देख लो, 20 होगा, 20 50 होगा, 20 30 40 48 एंड 250 50,000। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? हमने क्या किया, पहले हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसको गारंटी मिली थी उसको उतना दे दिया। कितना कम पड़ रहा है? 2000 कम पड़ रहा है, ये कौन देगा? ए देगा। अगर बी ने गारंटी ली होती तो बी से लेस करके, ए ने गारंटी ली है तो ए से लेस किया है। क्वेश्चन समझ में आया? तो हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नाउ अगेन वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नाउ द प्रॉफिट विल बी 80,000। अब इस प्रॉफिट को हम 80,000 ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट इज चेंज 80,000, प्रॉफिट को 80,000 ले लिया। नाउ हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? Now I will solve the same question and the profit is changed. हमने प्रॉफिट को चेंज कर दिया है, क्वेश्चन इज सेम। Now the profit I will change 80,000। अब इसको हमने 80,000 प्रॉफिट कर दिया है। Now let us see how this question will be solved. Again in the question, interest on capital is not given, interest on loan is not given, salary is not given, commission is not given, nothing is given. Only the profit is given and in the credit side always by balance brought down is written. ये हमेशा लिखा जाता है। by balance में क्या लिखते हैं? profit and the profit is given rupees 80,000। क्वेश्चन सेम है, हमने प्रॉफिट का अमाउंट चेंज कर दिया है 80,000। ओके, अब इस साइड कुछ नहीं है, टोटल कर देते हैं। टोटल कर दो दोनों साइड, यहाँ भी 80,000 हो जाएगा, 80,000 एंड हियर ऑल्सो 80,000। जो ज्यादा अमाउंट है वो दोनों साइड लिखते हैं। कम किस साइड है? कम इस तरफ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कम इस साइड है। तो दिस 80,000 विल बी प्रॉफिट। ये 80,000 प्रॉफिट हो गया। अगर क्रेडिट साइड में कम होता तो वो लॉस हो जाता, बट क्रेडिट साइड में कम है तो ये प्रॉफिट हो गया। Now the profit will be distributed among the partners. How many partners are there? 3 partners are there, A, B and C. Now distribute rupees 80,000 among the 3 partners. तीनों के बीच में बांट देंगे। So the ratio is same. Ratio is 2:1. Means A की ratio कितनी हो गई? Total profit is rupees 80,000 and A will get, A की ratio है 2 upon, इसको टोटल कर दो, 2 + 2 + 1, 2 + 2 4 + 1 5, 2/5। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 5 पे टेबल से कट कर देते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30 एंड 3 0 32,000। 16,000 into 2, 16 2 32 and 3 0 32,000। So A will get 32,000। ओके, 32,000 कैसे आया? 80,000 को उसके शेयर में दे दिया। 80,000 is given in the 2/5 share। ओके, now हाउ मच द बी विल गेट? बी को कितना मिलेगा? सो बीज रेशियो इज सेम, 2/5, उसको भी इतना ही मिलेगा। इतना क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी रेशियो भी सेम है, 2 है, ये बीच में नंबर 2 है, 2 एंड टोटल 5, 2/5। सी को कितना मिलेगा? सी में क्या करेंगे? 80,000 इंटू सी शेयर इज 1 टोटल कर दो 1/5। जो लास्ट में ये ए का है, ये बी है, ये सी है, 1/5। अब इसको कैंसिल कर दो, 16,000 ही आएगा। 16,000। ओके, 16,000। अगर डाउट होता है ये गलत है तो इसको हम टोटल करके देख सकते हैं। 30 30 60 एंड देन 70 76 77 78 79 80 80,000 करेक्ट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। सी हैज बीन गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12,000। सी को कितना मिलना चाहिए? 12,000। सी को 12,000 दे दो। ओ बट ही गॉट रुपीज 16,000। उसको तो गारंटी दी थी कि 12,000 हम देंगे, बट उसको कितना मिला है? 16,000 मिला। अब क्या करें? अब उसको ज्यादा मिला है, किसी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, कोई अपने प्रॉफिट में से देगा क्या? नहीं देगा। और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गारंटी उसको मिली थी कि 12,000 देंगे आपको प्रॉफिट, बट ही गॉट 16,000। उसको तो जितना गारंटी दी थी उससे ज्यादा मिल गया है। जब ज्यादा मिल गया है तो कोई क्यों देगा अपने में से शेयर? क्योंकि उसको ऑलरेडी जितना मिलना था उतना मिल चुका है। सो इन दिस कंडीशन, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? कम पड़ रहा था, ए ने गारंटी ली थी तो ए ने दिया। यहाँ पे लिखा है एनी एक्सेस विल बी पेड बाय ए। कम पड़ रहा था तो ए ने दिया। बट इन दिस केस यहाँ पे कुछ भी कम नहीं पड़ रहा है, उल्टा इसको ज्यादा मिला है। सो ए हैज टू गिव नथिंग। इसको कुछ भी नहीं देना है क्योंकि जितना देना था उतना मिल गया है। सो द आंसर विल बी, अब इसको 12,000 क्यों लिखा? उसको तो ऑलरेडी 16 मिल गया है। सो द फाइनल आंसर विल बी द सेम, 32,000 एंड
16,000. ओके, द फाइनल अमाउंट इज द सेम. क्यों सेम है? क्योंकि सी को जितना देना था उससे ज्यादा मिल गया है. जब उससे ज्यादा मिल गया है तो कोई क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्यों अपने में से शेयर देगा? जब उसको जितना देना था उतना ऑलरेडी मिल गया है, फिर कोई पार्टनर क्यों देगा? ओके, so here we complete this question, and in the same question I have solved the condition. Hope you understood this question. So in the next video we will again meet with a new topic. So till then, take care, bye.